Hello, good morning, all of you. Welcome once again. In our previous lesson, we already talked about molecular asymmetry, chirality, and enantiomer. This is second point, and now we are going to discuss the third important point, which is retention. So this is our third point about SN1 and SN2 mechanism, means nucleophilic substitution reaction. Okay, retention of configuration is the preservation of integrity of the spatial arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation. Preservation of integrity. See this is our reactant and this is our nucleophile. Why? This is our nucleophile. So this nucleophile attack this. So see this A here, C here, X here. So this is X. This is substituted with this Y. मतलब ये X यहाँ से substitute होगा इससे Y से. So here if X is substituted Y from this, तो ये यहाँ से substitute हो जाए यहीं पे हो जाए. ये as it is इसका स्पेशल अरेंजमेंट में है, मतलब ऑल द बॉन्ड एज इट इज ऐसे कैसे ही रहें. सो दिस इज नोन एज रिटेंशन. रिटेंशन मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड. दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम. रिटेंशन की पहली कंडीशन ये है, द कार्बन शुड बी एसिमेट्रिक. द कार्बन शुड बी एसिमेट्रिक सेंटर. इट इज ऑल्सो द कॉन्फिगरेशन ऑफ कोरिलेशन व्हेन ए केमिकल स्पीसीज एक्स CAB is converted into the chemical species Y CAB having the same relative configuration. Understand what I'm saying? Means ये जो आपको दिख रहा है ये asymmetric होना है. asymmetric मतलब यहाँ पे चारों अगर ये डिफरेंट नहीं है, if four groups are not different then it is asymmetric. अगर 4 group different है and nucleophilic substitution reaction proceed, if the carbon is not asymmetric, okay, ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज़ ऑल्सो द कॉन्फिगरेशन. सो मतलब बॉन्ड वैसे के वैसे ही रहें तो हम उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ इंटेग्रिटी और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. एसिमेट्रिक मीन्स ऑल द 4 कार्बन ग्रुप्स आर डिफरेंट. ऑल द 4 कार्बन ग्रुप्स आर डिफरेंट, मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी. सो ऐसा है और ये सारे बॉन्ड एज इट इज़ रहे. मतलब वो मैंने आपको बताया था पहले कि हेवी विंड अम्ब्रेला टर्न्स, मतलब एक हवा हेवी विंड बहुत हवा चलती है तो वो अम्ब्रेला क्या हो जाता है, टर्न्स हो जाता है. सो वैसा नहीं हो, वो वैसा ही रहे, सीधा ही रहे. तो ये ऑल द स्पेशल अरेंजमेंट इज़ आइडेंटिकल. ओके, सो दिस इज़ नोन एज रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन. ओके, सो इट इज़. See, this is another example. If during a reaction no bond to the stereo center is broken, see this is stereo center, means all the 4 groups are different. Stereo center means all the 4 groups are different. Hydrogen CH3, this is CH2 CH3 and this is bond. This is stereo center. अगर ये stereo center, if द बॉन्ड नो स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, इफ़ ये वाला बॉन्ड यहाँ इस कार्बन का कोई भी बॉन्ड ना टूटे. ये बॉन्ड देखो यहाँ से टूट रहा है. सी दिस बॉन्ड इज ब्रेक फ्रॉम दिस सी दिस कार्बन इज नॉट एन स्टीरियो सेंटर. ये एक स्टीरियो सेंटर नहीं है क्योंकि दिस कार्बन इज नॉट एन स्टीरियो सेंटर. हियर 2 हाइड्रोजन इज अटैच्ड. इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच्ड. सो इफ दिस बॉन्ड इज ब्रेक फ्रॉम दिस साइड, like if the bond is break from this side, so in the presence of HCl, so if during a reaction no bond to the stereo center is broken, the product will have the same general configuration of the group around the stereo center as that of the reaction. मतलब सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन इसका भी रहेगा. Same general configuration of group around the stereo center as that of the reaction. Such a reaction is said to proceed with the retention of configuration. इसी को हम retention बोलते हैं. मतलब all the spatial arrangement of the carbon bond is same. मतलब यह जो कार्बन के जितने भी
अरेंजमेंट है, स्पेसमेन का अरेंजमेंट है, वो उसी डायरेक्शन में रहे। सो हम इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। वो जैसे बॉन्ड पहले थे रिएक्शन से पहले, वैसे ही बॉन्ड सारे के सारे रिएक्शन के बाद में भी रहे। सो वी कॉल इट स्टीरियो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन known as retention of configuration. See this HCl, this OH group is replaced with this chlorine group, तो ये यहाँ से हट के यहीं पे लग जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे रिएक्शन होगी इस OH वाली जगह पर। सो दिस इज माइनस, माइनस मीन्स लिवोरोटेटरी इन नेचर, 2 methyl butane 1 ol, and after reaction is converted into plus 1 chloro 2 methyl butane. Okay, so this is retention of configuration. Now next, inversion, retention and racemization. Inversion, retention and racemization. Sorry, this is racemization. Okay, racemization. Okay, so there are 3 outcomes for a reaction at an asymmetric carbon atom. 3 outcome means, see this is our reactant, means this reactant converted into 3 product. ये जो आपको दिख रहा है, this reactant converted into 3 product, 3 product बना सकता है। तो कौन कौन से 3 possible product है? Consider the replacement of X by Y. Consider this X is replaced by Y. So 3 type के product बन सकते हैं। So suppose, see this, suppose this is reactant and this is our nucleophile. This nucleophile substituted with this X and A is the only product. If A is the only compound obtained, अगर if मतलब रिएक्शन होने के बाद सिर्फ हमको यही प्रोडक्ट मिल रहा है, सिर्फ A सिंगल प्रोडक्ट इज obtained, if A is the only compound obtained, the process is called retention of configuration. मतलब जैसे जैसे ये हाइड्रोजन इस तरफ था, ये हाइड्रोजन यहीं पर, ये CTH5 ऊपर की तरफ था, ये ऊपर ही है, ये CH3 इस तरफ यही है, मतलब यहाँ से रिप्लेस होकर इसी जगह पर Y लग गया, तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सी दिस B, if B is the only compound obtained, if B is the only compound obtained, the process is called inversion of configuration. Inversion means invert हो गया, उल्टा हो गया, जैसे एक अम्ब्रेला टर्न हो जाता है भारी हवा में, हेवी रेन में। सो देखो ये हाइड्रोजन इस तरफ था, अब ये पलट के इस तरफ आ गया है, दिख रहा है। सी दिस C2H5 ये यहीं पे ऊपर ही है, ये मिथाइल इस तरफ है, अब ये मिथाइल इस तरफ आ गया, ये X इस तरफ था, अब ये Y इस तरफ सब्स्टिट्यूट हो गया। सो अगर A मिलता है, सिर्फ इफ़ A इज़ द ओनली प्रोडक्ट, then we call it is retention of configuration, and if B is the only product, then we call inversion of configuration. Okay, and now let's third condition. If, see this is third condition, if 50% mixture of the above two is obtained, मतलब if 50% if a 50 mixture या 50% बोल सकते हैं of the above two is obtained, then the process is called racemization and the product is optically inactive. Optically inactive means not turn light to the left or right, ना तो light को left में घुमाएगा, ना ही right में घुमाएगा। As one isomer will rotate light in the direction opposite to the another. See this reaction once again. दिस, ये जो कंपाउंड है, अगर ये आपको A प्लस B दोनों मिलता है, मतलब 50% ये मिले और 50% प्रोडक्ट ये मिले, आफ्टर रिएक्शन 50% A एंड 50% B इन द रिएक्शन मिक्सचर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेसेमाइजेशन, मतलब 50% दोनों मिले तो हम उसको बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रेसेमाइजेशन, एंड दिस A एंड B इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये जो A और B का जो मिक्सचर आपको मिल रहा है, मतलब A भी है उसमें और B भी है, दोनों मिक्स हुए हैं, एक दूसरे में रखे हुए हैं, और दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, एज वन आइसोमर विल रोटेट लाइट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अनदर, मतलब एक लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, एक लेफ्ट में घुमाएगा, एक राइट में घुमाएगा, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सो दिस इज नोन एज इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसेमाइजेशन। इफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज प्रोसीड वाया
then 3 product will be formed, 3 outcomes will be formed, may be formed. ओके, 3 आउटकम्स हो सकते हैं. ओके, इन्वर्जन हो सकता है, रिटेंशन हो सकता है, या रेसमाइजेशन हो सकता है. सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. ओके, नाउ if now let us have a fresh look at SN1 and SN2 mechanism. now हम फिर से एक fresh look देखेंगे SN1 and SN2 mechanism by taking example of optically active alkyl halide. See this example. This is optically alkyl halide minus, इसके आगे माइनस लग रहा है, मीन्स दिस कंपाउंड इज लीवो रोटेटरी इन नेचर. दिस इज 2-bromo octane. सो हियर OH माइनस, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस्ड विद दिस ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन हट के OH रिप्लेस हो जाएगा. सो दिस इज SN2 मैकेनिज्म. ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा. कौन सा मैकेनिज्म रहा? SN2 मैकेनिज्म. इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड. अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इफ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, द प्रोडक्ट हैज़ द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट. मतलब ये अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इफ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड द प्रोडक्ट विल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इसके इन्वर्ट होगा, इसका इसके इन्वर्ट होगा, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट होंगे. सो SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली active halides are accompanied by inversion of configuration. See, this is the important point. Optically active alkyl halide, optically active halides, these optically active, अगर ये optically alkyl halide है, so inversion of configuration takes place. Okay, inversion of configuration वहाँ पर होगा. So this is because the nucleophile attach itself on the side opposite to one where the halogen atom is present. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये यहाँ से इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ये पीछे से अटैक करेगा, यहाँ से, ये यहाँ से अटैक करेगा. ये जो OH माइनस है, दिस OH माइनस अटैक फ्रॉम दिस साइड, जिधर ये ब्रोमीन है उसके अपोजिट साइड से इसके ऊपर, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर हमला करेगा, अटैक करेगा. और ये जब यहाँ से अटैक करेगा तो ये सारे पलट जाएंगे, इस तरफ हो जाएंगे. देखो ये अभी ऐसे ऐसे, अब ये इस तरफ हो गए, तो ये इन्वर्ट हो गए. क्योंकि ये जब भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ द हेलोजन. ये जो हेलोजन जिस तरफ भी होगा उसके पीछे की तरफ से अटैक करेगा, बैक साइड ऑफ द हेलोजन एटम, एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस. तो वेन एवर SN2 रिएक्शन विथ ऑप्टिकली एक्टिव हेलाइड्स आर proceed, then product will inversion of configuration. Okay, next see this in another group. Thus SN2 reaction in case of optically active alkyl halide, this is SN2 mechanism. ये SN2 mechanism था. Now see this SN1 mechanism. This is SN1 mechanism follow करेगा. In first step, in case of optically active alkyl halides, SN1 reaction आर accompanied by racemization. जब SN1 रिएक्शन होगी तो रेसेमाइजेशन होगा, मतलब 50-50% दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी. सो इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली द कार्बोकैटायन, ये जो देखो, ये फर्स्ट स्टेप में देखो इसका रीज़न क्या है. फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ SN1 मैकेनिज्म? फर्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. यहाँ से ये ब्रोमीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से दिस कार्बोकैटायन इज़ फॉर्म, दिस कार्बोकैटायन इज़ फॉर्म, यहाँ से कार्बोकैटायन बन जाएगा. एंड नेक्स्ट स्टेप, तो ये जो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. तो ये जो OH है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है. बोथ ऑफ साइड इट कैन अटैक्स. ओके, मतलब ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये OH ग्रुप यहाँ से भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है. सी दिस इज़ आवर दिस कंपाउंड, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है सेकंड स्टेप में. तो ये OH ग्रुप यहाँ से अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा. अगर ये OH ग्रुप इस तरफ से अटैक करता है यहाँ से, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा. मतलब इफ़ दिस अटैक फ्रॉम राइट साइड एंड इफ़ दिस अटैक फ्रॉम राइट साइड, लेफ्ट साइड, इधर से अटैक करता है तो ये बनेगा, इस तरफ से अटैक करता है तो ये बनेगा. तो बोथ ऑफ प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म, बोथ ऑफ प्रोडक्ट में बी फॉर्म. सो दिस इज, सी दिस प्रोडक्ट प्लस ब्यूटेनॉल, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर एंड दिस इज
minus butanol. This is levorotatory in nature. This is levorotatory in nature means 50% this form and 50% this form. 50% ये बनने वाला है, 50% ये बनेगा. And if this is dextrorotatory and this is levorotatory, so प्लस माइनस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे and the overall इसका जो वो है क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एल्काइल हैलाइड का 0 हो जाएगा इसका. ठीक है. रोटेट द लाइट इन द डायरेक्शन. प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. ये जो ओवरऑल हमारा जो मिक्सचर है ऑप्टिकली इन. सो इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. अगर इन केस ऑफ ऑप्टिकली active alkyl halides, SN1 reaction are accompanied by racemization. Means whenever a SN1 reaction takes place, then it is SN1 reaction with optically alkyl halide. optically active होना चाहिए वो. अगर optically active नहीं है तो racemization नहीं हो सकता. optically active alkyl halide SN1 reaction are accompanied by racemization. optically active होने की फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट. दिस हियर CH2, हाइड्रोजन CH3, ये चारों ग्रुप है. मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है. ये ऑप्टिकली एक्टिव है ही. तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी रेसेमाइजेशन होगा. विदाउट ऑप्टिकली एक्टिव रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होने वाला है. ओके. सो इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन आर accompanied by racemization एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromobutane. यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस किया हमने. हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन. हाइड्रोलिसिस ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromobutane विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लस माइनस. जब वेन एवर ए रेसेमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड देन वी प्लस एंड माइनस बोथ ऑफ साइन वी राइट बिफोर द नेम. उसके नाम से पहले प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है. मीन्स दिस इज़ ए रेसेमिक मिक्सचर. इसका मतलब है प्लस माइनस का मतलब है दिस इज़ ए रेसेमिक मिक्सचर. ओके. रेसेमिक मिक्सचर मीन्स इसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 है. ओके. ठीक है. सो लेट्स लुक. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखें. जब भी SN2 मैकेनिज्म होगा विथ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड देन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस. ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन क्या है, 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट. द स्टीरियो सेंटर ऑफ द कार्बन देन 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट. देन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस. इन्वर्जन मीन्स ये इस तरफ थे सारो बॉन्ड, अब ये इस तरफ हो जाएंगे, अम्ब्रेला की तरफ पलट जाएंगे. नेक्स्ट, अगर SN2 में SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो रेसेमाइजेशन होगा. दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है. 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड 50% लीवोरोटेटरी. एंड द ओवरऑल दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू वन आइसोमर कैंसल द रोटेशन ऑफ अदर आइसोमर. ओके. सो नाउ दिस इज आवर last session about the SN1 and SN2 mechanism. So अब ये हमारा SN1 और SN2 mechanism आज पूरी रिएक्शन ख़त्म हुई. जितने भी लेक्चर हमने पढ़े हैं प्लीज़ इसको अच्छे से देखें. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन. इसके बाद हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे. तो हमने एल्काइल हैलाइड की यूनिट 10 की फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. So a lot of session is covered in this session, so please carefully watch this. If you have any problem then please mention me, we will solve your problem. And I hope you are watching the video carefully 1 times or 2 times, or if you not understanding 3 times or 4 times you may see. Okay, bye. Thank